let's start. Let's quickly revise what we did in the last lecture and then we'll proceed further. Okay. So what we were doing in the last lecture, we were doing 403. Okay, we were doing 403. No, last lecture we had started 405. ठीक है, 403 तो उससे पहले ही खत्म कर दिया था हमने, I guess. ठीक है, लास्ट लेक्चर में we had started with 405. ठीक है, we had started with 405. तो 405 में क्या होता है? 405 में the essence, I told you what is the essence under 405. The 405, the essence under 405 is that you have entrusted a property to someone. ठीक है, you have entrusted a property to someone and that person has either converted that property or misappropriated that property. ठीक है, so the essence here is entrustment. ठीक है, you have entrusted a property to someone or you have given the control of the property to someone and that fellow had converted, misappropriated, used it, in fact even used it, used it not properly, used it or disposed it, used and disposed against in violation of contract and law. ठीक है, in violation of contract or law. ठीक है, so these things we understood that entrustment. Then we went on to understand what exactly is entrustment. Entrustment पे हमें समझना था कि what exactly will be entrustment. So I told you, see, entrustment में what is happening is that you are giving possession. You are sorry. In entrustment, you are abdicating the possession of the property. Mean that you are not you are giving the property to someone. You are giving the possession of the property to someone, but you are retaining ownership. So giving possession and retaining ownership. This is what is happening in entrustment. ठीक है, एक possession दे रहे हो और ownership retain कर रहे हो, ये आपका हो रहा है इसमें entrustment में. ठीक है, then we went on to understand state of Gujarat versus जसवंत लाल नथा, जहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था. गवर्नमेंट had asked a person government was selling cement to a fellow and they had asked that fellow to use it only for construction purpose. And what did he do? Construction purpose. And what did he do? This fellow, what did he do? He started keeping it in his own go down. Okay, so he misappropriated the cement basically. But the question was whether the cement was entrusted upon him. The answer was no, because possession and ownership both were given. So the ownership was not retained in that case. So that is the reason it was not a case of entrustment. So therefore 405 will not kick in. Fine. Then we went on to understand state of UP versus Babu Rao. In that case, what had happened? There was a police officer. Okay, he started searching Tikaram, and while the search was going on, there were certain currency notes on the persons of on Tikaram's on Tikaram, and Tikaram gave it to the police so that he could actually complete the search. The police searched the currency note and police gave 250 less to Tikaram. So the question was whether in this case, whether Tikaram had entrusted currency note upon the police officer. The answer to this was yes, because the currency notes were given for a particular purpose and that purpose was to search the currency note. And what did he do? He misappropriated that. He kept 250 along with himself, and that is the reason 405 will kick. Fine. So यहाँ तक हमने मेरे हिसाब से किया था, and we concluded our lecture. Now see, now these are the cases in which you understood what is entrustment. आपने ये कुछ cases है जिसमें आपने समझा कि entrustment क्या है. Now there is this other concept which is known as known as casual entrustment. Now दो entrustment होते हैं, जो one is entrustment provided under 405 and the second concept is casual entrustment. एक तो entrustment है जो 405 में है and दूसरा entrustment है casual entrustment. Now what is casual entrustment? See, ideally, first it is a type of entrustment. Casual entrustment is a type of entrustment in which you are retaining your possession. आप जो अपनी possession है ना, वो आप retain कर रहे हो अपने पास. You are retaining your possession with yourself.
So that is what is known as casual entrustment. So in this case, this is not an entrustment under 405. In that case, what is happening, you are retaining some part of the possession. For example, say I am giving my servant, ठीक है, my car, and I am asking him to take care of this car. ठीक है, till then I'll go to say Delhi. So what does my servant do? My servant takes this car. My servant takes this car and he goes to his village and he sells this car from there onwards. ठीक है. Now did I entrust this car upon my servant? The answer to this is no. This is a case of casual entrustment. मतलब मैंने अभी तक सौंपी नहीं उसे कार. This is a case of casual entrustment because he is my servant. Fine. So there is a relationship between me and him. So I still have the control over the car. So I still have this constructive possession over the car. जब तक मेरे पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है कार के पास, जब तक मेरे पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, द टाइम टिल द टाइम आई हैव कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ओवर द कार, 405 will not kick in. Will not kick in. The reason is the main object of 405 is that one person who is entrusting the property to other person, he is not keeping any possession with himself. वो खुद के पास कोई पोजेशन नहीं रख रहा, वो पूरी तरह से प्रॉपर्टी उसको दे रहा है. इस पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने सर्वेंट को दे रहा हूं. So servant is sort of my agent. So now since I am giving it to my agent, so here I am retaining some constructive possession because I have control over that agent. So as long as I have control over the agent, I have control over the property as well. So I am retaining this, I am retaining my possession. Fine. Is this clear? Yeah, the clear? So you can say that this can fall under section 27 also. Section 27 में constructive possession का एक element है. So this can fall under section 27 also. Section 27 में क्या बोला है कि servant, if anything is in the possession of servant, it should be in possession of the person who actually owns it. Fine. Yes, Anshika, बताइए. Sir, I was just getting confused. Sir, casual entrustment is equal to the constructive possession? Yeah. Casual entrustment is equal to constructive possession. ठीक है. Yes, Mansi. So section 381 will also be applicable, so right? Yeah, section 381. Theft हो जाएगा ना, theft हो जाएगा, correct. जी. Correct. अब देखो, इसमें अब क्या हो रहा है कि देखो, इंट्रस्टमेंट में अगर एक फॉर्मल ट्रस्ट है, इफ अ फॉर्मल ट्रस्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट ट्रस्ट प्रोवाइड्स फॉर अ फॉर्मल इंट्रस्टमेंट, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है कि बॉस, दिस फेलो विल हैव द प्रॉपर्टी फॉर सो एंड सो टाइम एंड दिस फेलो हैज टू यूज द प्रॉपर्टी इन सो एंड सो केस. सो दिस इज अ फॉर्मल ट्रस्ट. नाउ यहां तो क्लियर इंटरेस्टमेंट है. दिस इज अ केस ऑफ क्लियर इंटरेस्टमेंट. If a person uses the property in violation of the obligations or the contract and he dishonestly uses this property, if the person dishonestly uses the property in violation of this trust, in that case he will be held liable for 405. ठीक है. अब दूसरा चीज होता है, ये तो फॉर्मल ट्रस्ट में तो वी आर वेरी सिंपल, फॉर्मल ट्रस्ट है, इंटरेस्टमेंट हो गया. बट देयर आर थिंग्स व्हेन यू हैव हैंडेड द पोजेशन. Handed the possession. Now, what are these cases in which you have handed the possession? Okay. In handing the possession, there can be one thing when the person has taken charge of the property. Taken charge of property. अब charge of property कब लेगा बंदा? जैसे आप क्लोक रूम जाते हो. क्लोक रूम पता है किसी को? You go to cloak room. ठीक है. You submit your baggage. बैगेज लेते हैं, ठीक है, एंड यू पे सर्टेन अमाउंट, ठीक है, एंड दे गिव यू अ टोकन एंड यू पे अ सर्टेन अमाउंट. सो आफ्टर पेइंग द सर्टेन अमाउंट, द पर्सन विल हैव द चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी. यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ना रखने के लिए.
सो दैट पर्सन हैज द चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी कि जब तक आप अमाउंट नहीं पे करते तब तक आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास रहेगी, ठीक है। ये क्लोक रूम का हो गया ऐसा। सो हियर बिकॉज ही हैज द चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी, he has a charge of the property and he takes some charge from you. He takes some charge, ठीक है। He has the charge of the property and he takes some amount from you. He takes some fee from you. He is taking some fee from you. So therefore you can say that this is a clear case of entrustment, ठीक है। Certain amount is paid. So कुछ तो भी है, तो इसलिए आपको certain amount has to be paid. Therefore this is a clear case of entrustment. अब आ जाओ वेयर हाउस कीपर पर। वेयर हाउस कीपर को भी देते हो पैसे? डेफिनेटली ना, यू गिव मनी टू वेयर हाउस कीपर। सो नाउ द क्वेश्चन इज whether you can now when you are in a warehouse keeper, when you have given your goods in a warehouse, the question is whether you can take out your goods without completing the formalities. बिना पैसे भर के आप क्या अपना गुड्स निकाल सकते हो वापस? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट. So in this case, there is entrustment. Fine, there is entrustment. Same applies in a formal parking. मैं informal parking की बात नहीं कर रहा. I'm talking about a formal parking wherein you are giving some amount and you are taking the ticket and you are parking your car. You are paying the amount. You cannot leave the place without paying the amount. ठीक है? You cannot leave the place without paying the charge. So here also formalities are involved. So यहाँ पर भी formalities involved हैं. So in these cases, since the possession, you can say that the possession is completely handed over. Without paying the amount, you cannot take the goods, which means that you do not have the control over the goods. So यहाँ पर क्या हुआ है कि you have handed the possession and you have not even retained constructive possession. So constructive possession in such cases is not retained. Is this clear यहाँ तक? ठीक है, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. अब now see, this is not the only criteria which is taking charge of the property, or if an amount is payable to a certain things. There can be certain areas or certain places where there is no charge. ठीक है, मान लो you go to a temple, you take a token, अपनी चप्पल देते हो उनको. अब now there is no charge. They are not taking any money from you. Suppose you go to a public place wherein they are giving you a token and you are allowed to park your car. Again, there is no charge, but still you have entrusted your property upon them. You have not left your possession, because here also, because since the token is involved, so you do not have any control over the property. You have to give him the token, then only you can get the chappal. आप ऐसे नहीं जा सकते कि अरे चप्पल दे दीजिए. Some formality is involved. So whenever there is a case of formalities, or wherever you have handed the possession and some formality is involved to retain the possession back, कुछ formalities है कि possession वापस लेने के लिए, in that case you can say that it is entrustment. It is entrustment. Now see, it won't be same for every case. Obviously it will have to depend upon facts and circumstances of each case. It will have to depend upon the person whom you are giving. It will have to depend upon for the time period you are giving. अभी सपोज मैंने अभी चप्पल ऊपर रख दी, उसने जस्ट अभी अंदर रख दी, मैं फटाफट आ गया, मैंने फटाफट बाहर से, मुझे लेट हो रहा था, मैं बाहर से हाथ जोड़ के फटाफट मैंने चप्पल ले ली. सो इन दैट केस आई कैन नॉट से दैट आई हैव इंटरेस्टेड द प्रॉपर्टी अपॉन हिम, बिकॉज द टाइम पीरियड इज वेरी लेस. अभी के अभी मैं आया, मैंने फटाफट हाथ जोड़े और मैं यहाँ पर चला गया, बाहर से हाथ जोड़ लिए. सो हियर आई वाज प्रेजेंट देयर, सो यू कैन नॉट से दैट दिस इज इंटरेस्टमेंट. ठीक है, सो दिस इंटरेस्टमेंट विल ऑलवेज बी will always be viewed from facts and circumstances of each case. ठीक है? Yes, Srishti. Sir, just please explain this point again, the warehouse point, sir. ठीक है. See, when you are keeping the goods in a warehouse, you have to pay certain charge. You cannot take out the goods without paying those charges. Suppose आपको बोलेंगे 1 टन का इतना लगेगा, ठीक है? आप अपना गुड्स निकाल ही नहीं सकते उतना अमाउंट पे करने के लिए. सपोज उसने बोला 1 टन का 10,000 लगेगा, सो यू कैन नॉट टेक गुड्स out without paying this 10,000 or without paying the formalities or without making through the formalities.
So here some formalities are involved. So you cannot say for removing your goods. So you cannot say that you have the complete control over the goods. So since you do not have the complete control over the goods, इसके लिए ये बोलना सही होगा कि you have entrusted the property to the warehouse keeper. Is this clear? Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है. अब देखो कि अब there may be situations wherein there is charge, but still there is no interestment. अब ये तो कुछ चीजें हैं कि जिसमें चार्ज है और इंटरेस्टमेंट हो गया, मान जाएंगे क्योंकि फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व है. कुछ ऐसी जगह पर है जहां पर चार्ज भी होता है बट इंटरेस्टमेंट नहीं होता. अब मैं बताता हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फ्रॉम बिहार? कितने लोग बिहार से हैं? अच्छा, आप दो. आप अपने एयरपोर्ट पे कभी गए हो? 4-5. यस सर. तो आपके एयरपोर्ट में मैं बताता हूँ कि अब ऐसा एयरपोर्ट, सपोज यहाँ पर ये एयरपोर्ट है, ठीक है, और ये पार्किंग है. ये एक रोड है शायद, यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग है और यहाँ पर ऐसी पार्किंग है, ठीक है. अब क्या होता है इनकी पार्किंग में कि आई जस्ट हैव टू पे द अमाउंट, ठीक है, एंड आई हैव टू पार्क द व्हीकल. अब जब मैं अंदर जाके लेके आऊंगा तो कोई मुझे रोकेगा नहीं. नो वन विल ऑब्जेक्ट मी. Fine. So here, even if there is charge, but there is no interestment. The reason being that the person has no control over my property. He's just taking the charge for allowing me to use the parking. वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि मुझे रोक नहीं रहा कि अरे वो दिखाओ ये दिखाओ. मैं यूज कर सकता हूँ कभी भी, ठीक है. तो ये पार्किंग, ऐसे पार्किंग ये बोलते हैं कि इनको कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पार्किंग का, दिस इज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ पार्किंग. सो इन सच पार्किंग्स देयर इज नो इंटरेस्टमेंट बिकॉज यू आर नॉट गिविंग अवे योर पोजेशन. फाइन, you are not interesting the other person, rather the possession is intact with you. You are just paying the amount for using the parking. वो वाला हिसाब है, ठीक है. अब आ जाओ casually handing over the property. अब दूसरा है casually handing over the property. This is also known as casual entrustment. अब ये समझते हैं, casually handed over the property, ठीक है. This is also known as casual entrustment. अभी समझ में आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द एंटायर थिंग? यस सर. जो 378 वाले डाउट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं अभी? बताओ. नहीं? यस सर. Yes, sir. यस मानसी. सर आप जो भी पहले जो समझाया पार्किंग वाला एक बार रिपीट कर देंगे क्या? हाँ जी. इसमें क्या है ये वाली पार्किंग में कि यू जस्ट पे द अमाउंट. आप पैसे देते हो और पार्क कर देते हो. अब आप अपनी मर्जी से कभी भी निकाल सकते हो गाड़ी. आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज भी नहीं फुलफिल करनी. तो ये जो स्ट्रक्चर है पार्किंग का, ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो ये ऐसी पार्किंग में आप इंटरेस्टमेंट नहीं, आप सौंप नहीं रहे गाड़ी उसको. आप सिर्फ पैसे भर रहे हो पार्किंग यूज करने की. फाइन. यस सर. ठीक है. अब हो जाए कैजुअली हैंडिंग ओवर द प्रॉपर्टी. दिस इज नोन एज कैजुअल इंटरेस्टमेंट एंड दिस डज नॉट फॉल अंडर 405. ये कभी भी 405 पे नहीं फॉल करेगी. अब जैसे पहले मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, when we were doing 378, I gave you an example. Suppose A gives B money, ठीक है, and he gives money to buy ticket, ठीक है, and A stands on the spot. उसी जगह पे खड़ा हो रहा है, वो उसी स्पॉट पे खड़ा हो रहा है. He is giving B money कि आप मेरे लिए टिकट ले लीजिए, and he is standing there at the spot. अब क्या होता है, B भाग जाता है, B runs away. So I told you that this is not a case of entrustment because he is standing on the spot. So he has retained constructive possession. He has retained constructive possession. So this you can call that this is casually handing over the property. This is casual entrustment. This is not an entrustment which will fall under 405. इसने क्या किया, इसने अपनी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन रिटेन की हुई है, ठीक है. फाइन. अब अगर ऐसी चीज हुई कि A goes to B and tells him कि बॉस मेरे लिए टिकट खरीद लो, और मैं घर से होके आया,
buy a ticket for me. I'll just go to home and I just come. A says fine. He gives him 500 rupees. A goes home, and then when he returns, he does not find B. B is gone. Now here, what did A do? A did not retain possession. He did not retain constructive possession. जो अपनी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है उसने रिटेन नहीं की, उसने बचा के नहीं रखी अपनी पोजेशन, उसने दे दी पूरी तरह से सारी पोजेशन दे दी उसको कि भाई तू 500 ले. इसके पास कुछ कंट्रोल ही नहीं ना उस 500 के ऊपर. What control he has? He has no control over that 500 rupees. He has just given him. Fine. So in such cases, you can say that this is a case wherein 405 will kick in. In such cases, you can say that 405 will kick in because A is in a constructive possession. Sorry, A is not in a constructive possession. A is not in a constructive possession. ठीक है. तो yes भावना. सर जब आपने टेम्पल वाला एग्जांपल दिया था कि स्लीपर साइड में ही रखकर, तो वो भी कैजुअल इंटरेस्ट वो भी इंटरेस्टमेंट या वो भी कैजुअल इंटरेस्टमेंट. ओके ओके सर. ठीक है. अब देखो, सपोज ऐसी चीज हुई कि देयर इज दिस ए, स्टेशन पे हैं दोनों. उसने बी को बोला कि सर 1 मिनट मेरा सूटकेस संभाल लीजिए, मैं वहां से चाय पी के आया, प्लीज टेक केयर ऑफ माई सूटकेस, आई विल जस्ट ड्रिंक टी एंड कम. You take care of my suitcase and I'll just drink tea and come. I'm just here. I'm standing here. Fine. A is watching B. Now tell me whether A has retained constructive possession or he has abdicated constructive possession. Abdicated मतलब given constructive possession. ठीक है, अब बताइए बाबा. Yes sir, retained because he was watching. ठीक है. Yes, he has retained constructive possession here. A has retained constructive possession. Retained constructive possession. ठीक है. Now in this case, this will be theft. ठीक है. अब सपोज ऐसा चीज होता है, A बोलता है B को कि आप मेरा सूटकेस संभाल लीजिए, टेक केयर ऑफ माई सूटकेस, आई विल go and pick up my wife. She is outside the station. Now tell me, retained constructive possession or abdicated constructive possession? Abdicated. Yes, yes Anshika. Yes, sir, he didn't retain. Yes, in this case it is abdicated. He will be held liable for criminal misappropriation. B will be held liable for criminal misappropriation, that is 405. Here B will be held liable for theft. Fine. This is what the concept of casual handing over means. So mere casual handing over does not mean that you are interesting. So how do you assess? How do you decide that this is not a mere casual holding over? This is not merely casual. This is not merely casually handing over, but this is more than that. So you will have to view the following circumstance. You will have to view the following elements. First, you will see the circumstances under which. First, you will view the circumstances under which it was handed over. कि क्या circumstances में दिया गई थी प्रॉपर्टी. दूसरा, you will see the directives which were given. कि directives क्या थे देने के लिए. Directives which were given कि कैसे यूज करनी है वगैरह वगैरह. And third is distance to which the person had gone. ठीक है. And fourth is the purpose of handing over. ये चारों चीजें एग्जामिन करने के बाद you will understand, after examining all these four things, you will understand that whether this is a mere handing over or it is an actual entrustment.
So suppose distance बहुत कम है, it's only he's standing there, but he has given you the property. So here he has retained constructive possession. Fine. He has given the purpose of handing over the property was it was given to a servant, and it was given for a specific period of time. So in that case, you can say that okay, fine, this is certainly a constructive possession. Directives were given which ensured that he had the control over the property. ऐसे directives दिए थे कि जिससे पता चलता था कि कंट्रोल है उसको प्रॉपर्टी में. जैसे उसको बोल दिया गया था कि यार ये प्रॉपर्टी तो रख लो, बट मेरा भाई रोज देखेगा इस प्रॉपर्टी को, रोज निगरानी रखेगा इस पर. सो नाउ कंट्रोल इज इंश्योर्ड. सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट वाज हैंडेड ओवर. अब क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें हैंड ओवर किया गया था? जैसे अब ट्रेन के एग्जांपल में इट वाज हैंडेड इन अ हरीड मैनर, और वो वहीं खड़ा था चाय पीने के लिए. सो द सर्कमस्टेंसेस क्लियरली शोड दैट ही इज ट्राइंग टू रिटेन द कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. ही सर्टेनली हैज द कंट्रोल. सो in 4 circumstances पे you can ensure whether the person is actually retaining constructive possession or it is a case of theft. If he is retaining, whether he is retaining constructive possession or he is abdicating it. If a person retains constructive possession, if he is retaining constructive possession, then you can say it is a case of theft. फिर हो गया theft. अगर भाई साहब रिटेन नहीं कर रहे, he is abdicating constructive possession. He is abdicated constructive possession. Then it is a case of criminal misappropriation of trust, CBT. Sorry, criminal breach of trust, misappropriation, criminal breach of trust, that is CBT. ठीक है? Is this clear? Is this clear? Yes. ठीक. Yes, sir. Fine. अब आ जाओ इस पर. अब देखो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था. अब देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक. वी हैव सीन whatever we have seen, whatever examples we have seen, whatever cases we have seen, we have only seen. ये लिखना तो नहीं चाहोगे ना जो मैंने, वो तो लिख लिया होगा ना? That you guys must have written ना? Yes, sir. Yes, sir, written. ठीक है. अब देखो most examples which we have seen, what we have found is that an owner of the property is entrusting upon a person, and ultimately that person is misappropriating the property. सारे examples जितने भी देखे, टिकाराम वाला ले लो. टिकाराम is the owner of the currency. He is giving it to the other person. The person is misappropriating. Fine. वो चप्पल वाले में और बैग वाले में the owner is giving the property to a person and the person is misappropriating. Now I am giving you a case. अब ये थोड़ा ध्यान से सोचना, ठीक है? Now इसमें what is happening, there is this conductor. Fine. कंडक्टर का क्या काम रहता है? टिकट काटना. Fine. He has to, what is his job? To give tickets. Fine. To give tickets and to collect the fee, to collect the fare. टिकट देना और फेयर कलेक्ट करना. फेयर किससे कलेक्ट करेगा? कस्टमर से. Passengers, correct. Customers or passengers. So now his job is to give tickets and to collect fare. Now what does this fellow do? This fellow gives tickets. He collects fare, but he misappropriates this fare. ये खुद के यूज के लिए, सपोज उसने 1000 रुपए फेयर रिसीव किया, 500 रुपए उसने खुद रख लिए. Suppose he has received fare of ₹1000. He kept 500 for himself. Now tell me whether this is criminal breach of trust. बताइए. Yes, sir. ठीक है. Why do you think so? अमित कुमार ना, राइट? आपने आंसर किया ना? Why do you think so, अमित? सर लगा ना मुझे वो ट्रस्टी, वो गवर्नमेंट के साथ ट्रस्ट जो है वो खराब था उसका. हाँ, करेक्ट. गवर्नमेंट के साथ तो ट्रस्ट खराब था, बट अभी यहाँ पर क्या है कि हर इसमें क्या हो रहा था कि ओनर प्रॉपर्टी दे रहा था और पर्सन मिसअप्रोप्रिएट कर रहा था. यहाँ पर कस्टमर ओनर नहीं है, ओनर गवर्नमेंट है. ठीक है, तो विल इट स्टिल अमाउंट टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? यस शिवानी, आप बताएं. Sir,
आई डोंट थिंक सो इट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सर। मेरे को लगता है कि ये थेफ्ट होगा, क्योंकि सर रीजन ये है कि सर ये रिटेन जो गवर्नमेंट है सर, अपना कंस्ट्रक्टिव पोजीशन रिटेन किया है सर। गवर्नमेंट इज नॉट कीपिंग एन आई कि वो कितने पैसे ले रहा है नहीं ले रहा। सो फॉर दैट पर्पस आई थिंक सो इट्स थेफ्ट, इट्स नॉट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। यस सृष्टि, यस सृष्टि, यस 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 अंशिका, सॉरी। Sir, I think it is a criminal breach of trust because the government has entrusted him with the job, and with the facts and circumstances, we can see that the government is not keeping a regular check, and they're like applying all those examined points that you have told. I feel like, sir, it is the criminal breach of trust. ठीक है, यस मानसी। Sir, it is not a criminal breach of a trust, but a theft, as here there's a constructive possession is there, that's why of the Yes, sir. government. Yes, Sarthak. Yes, Sarthak. Sir, I also think that it is criminal breach of trust, sir, because customers are entrusting with their money to conductor, and sir, in the same way, government is also entrusting. So he is the middleman, and sir, he has been entrusted with a certain duty ठीक है, of giving the money. ठीक है। तो देखो, यही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसके ऊपर कंडक्ट किया है? कस्टमर के ऊपर कंडक्ट किया है या गवर्नमेंट के ऊपर? अगर गवर्नमेंट के ऊपर किया है तो गवर्नमेंट तो प्रॉपर्टी दे नहीं रही, प्रॉपर्टी तो कस्टमर्स दे रहे हैं। यस भवानी। Yes, sir. It is the criminal breach of trust. I think so. ठीक है, why do you think so? Because you have told us 4 elements regarding that why there will be criminal breach of trust. The government is the true owner, but in this case there are 2 owners, like a customer is also and government is also. ठीक है, yes, if we think on the hand of customer, then there will be no criminal breach of trust. ठीक है, But if we think on the hand of government, it will be. okay, fine. So आप मान रहे हैं कि गवर्नमेंट ओनर है, ठीक है, ठीक है, फाइन। यस जतिन। Yes, sir. I also think this is CBT because here it is the public money and the conductor has been entrusted with that public money and he is also bound by the contract with the government. So I think it will be criminal breach of trust. ठीक है, yes Sarthak. Sir, it can be also this that ownership has nothing to do with possession, so that is why also, या फिर entrustment के अंदर ownership मतलब होनी जरूरी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, रुको। अब इसमें क्या हुआ था, these are the exact facts of पुष्पा कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम हाई कोर्ट का जजमेंट है। वहां पर क्या था कि पैसेंजर्स वर पेइंग सर्टेन अमाउंट टू अ कंडक्टर, कंडक्टर वाज नॉट गिविंग इट टू गवर्नमेंट। फाइन, सारे पैसे नहीं दे रहा था, मतलब इन्होंने 1000 दिए, वो देता था 500। ठीक है, तो अब क्वेश्चन था कि वेदर and government filed a criminal case for CBT, criminal breach of trust. The court in this case, Sikkim High Court said that this is not criminal breach of trust, because one of the main elements of criminal breach of trust is that the property must be handed over by the aggrieved person, that is government. Government ने hand over करनी चाहिए थी property, तब CBT होना। Now this was held by Sikkim High Court in Pushpa Kumar Rai. This judgment was overruled by the Supreme Court. Supreme Court ने बोला कि यार property is actually handed over by government only. अगर आप ध्यान से देखें, the moment passenger is paying the conductor, government becomes the owner. ठीक है, जैसे ही पैसे कंडक्टर के पास आते हैं, गवर्नमेंट बिकम्स द ओनर ना। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने ही हैंड ओवर की है प्रॉपर्टी, फाइन, संभालने के लिए उनको। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पैसेंजर इज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट और उनको दे रहा है पैसे। ठीक है, इन दिस केस इट इज अ क्लियर केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिकॉज ही हैज misappropriated that amount of the government. This was held in a subsequent Supreme Court judgment. तो पहले इस केस में which is पुष्पा कुमार राय, पुष्पा नहीं, पुष्पा,
Pushpa Kumar Rai. Pushpa Kumar Rai versus State of Sikkim. The Sikkim High Court judgment of Sikkim. ठीक है. This is 1978 and this is Sikkim High Court judgment. ठीक है. इस केस में the court held that one of the most important elements of entrustment is that the property entrusted should be entrusted by the aggrieved person. So one of the most important element is this, that the property must be entrusted by the aggrieved person. Aggrieved person द्वारा property interest की होनी चाहिए. This judgment was overruled by the Supreme Court in Somnath versus State of Rajasthan. आगे बढ़े, ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. अब this was overruled in Somnath versus State of Rajasthan. सर एक ठीक बार है. लास्ट स्लाइड दिखा हाँ जी. दीजिए. ओ यस अदिति. थैंक यू सर. यस अदिति. ठीक है. तो इसमें क्या था? सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. State of Rajasthan, and this is 1972. I am unable to mute myself. ठीक है. Wait, एक बार. Can you explain us once again what ये पूरा concept? ये पूरा कॉन्सेप्ट पुष्पा राय केस. पुष्पा राय में यही बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो प्रॉपर्टी इंटरेस्टमेंट है प्रॉपर्टी का, दैट हैज टू बी डन बाय द अग्रीव्ड पर्सन. जो अग्रीव्ड पर्सन है जिसने केस फाइल किया है, दैट पर्सन हैज टू हैव इंटरेस्टेड द प्रॉपर्टी. इसमें गवर्नमेंट ने केस फाइल किया था एंड द प्रॉपर्टी वाज नॉट हैंडेड बाय द गवर्नमेंट, द प्रॉपर्टी वाज हैंडेड बाय द कस्टमर्स, द पैसेंजर्स. क्लियर है? नॉट क्लियर? ठीक है. अब देखो इसमें इट वाज हेल्ड दैट पर्सन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट. ठीक है. इसमें इट वाज हेल्ड दैट द पर्सन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट, द पर्सन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट मनी, authorized to collect money on behalf of another, other is entrusted with the money, when the amount is paid to him, is paid to him. ठीक है. जैसे ही अमाउंट उसको पे किया गया तो उसको आप बोलोगे कि ही इज इंटरेस्टेड. ठीक है. नाउ द पर्सन पेइंग, चाहे द पर्सन हु इज पेइंग, he may no longer have the proprietary interest, or the person this fellow, जरूरी नहीं है कि the person paying needs to have a proprietary interest. ठीक है. ओनरशिप जरूरी नहीं है कि उसको होनी चाहिए, as long as ओनरशिप गवर्नमेंट को है. ठीक है. So person paying may not person paying may not have ownership. ठीक है. The person on behalf of whom it was collected becomes the owner. The person on behalf of whom it is collected becomes the owner, becomes the owner. ठीक है. अब समझो, 3 लोग हैं आपके पास, पैसेंजर, कंडक्टर, सरकार, गवर्नमेंट. फाइन. Passenger, the moment he pays say 500 rupees to conductor, he loses ownership.
loses ownership, loses possession as well, right? वो तो पैसे दे रहा है ना। अब बोलो, क्या पैसेंजर ने इंटरेस्ट की है प्रॉपर्टी कंडक्टर को? बोलो, बताओ, बोलो। इंटरेस्टमेंट का मेन एसेंस क्या है? मेन एसेंस क्या है इंटरेस्टमेंट का? ओनरशिप। ओनरशिप हैज टू बी रिटेन्ड विद द retain the ownership. हाँ, तो यहाँ पर उसने लूज कर दी ओनरशिप भी, लूज पोजीशन भी कर दी, तो इंटरेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर। फिर अब कंडक्टर यहाँ पर पैसे नहीं देता गवर्नमेंट को, 250 देता है। तब सवाल उठता है कि ये 250, बाकी 250 की ओनरशिप किसके पास है? बाकी 250 की ओनरशिप तो गवर्नमेंट के पास ही है और पोजीशन इसके पास है। तो दैट इज व्हाट वाज डिस्कस्ड इन दिस केस कि the person authorized to collect on behalf of the other is entrusted with the money when the amount is paid. जैसे ये 500 रुपए पे हो गए कंडक्टर को, he becomes interested of this 500. He has to take care of this 500, and he becomes interested not on behalf of the passenger but on behalf of government. Government interest कर रही है उसको, fine. On behalf of the government he becomes interested. गवर्नमेंट ने सौंपा है ना उसे 500 रुपए, समझ लो। अब इफ ही डज नॉट पे दिस अमाउंट बैक टू द गवर्नमेंट और इफ ही रिड्यूसेस, देन इट विल बी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्लियर है ये? No, sir. Sir, can you please explain this once again? The entire thing? No, sir, the three things were like हाँ जी, this example. ठीक Last example. सपोज ये पैसेंजर है, suppose this is passenger, fine, and then there is conductor. ये कंडक्टर है, ठीक है। अब ये हो गया गवर्नमेंट। when passenger pays the amount, say he pays 500 rupees to the conductor, अब बताओ पैसेंजर ने क्या किया है? पोजेशन लूज किया है, लूज की ना पोजेशन? Yes, sir. हैज ही लॉस्ट ओनरशिप? यस, Yes, sir. ठीक है। अब क्वेश्चन है कि वेदर दिस इज अ केस ऑफ इंटरेस्टमेंट। नो इंटरेस्टमेंट, दिस इज नो इंटरेस्टमेंट, राइट? इंटरेस्टमेंट नहीं है, पैसेंजर के द्वारा इंटरेस्टमेंट नहीं है। सो द क्वेश्चन इज हु इज इंटरेस्टिंग द कंडक्टर? गवर्नमेंट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ही इज कलेक्टिंग दिस 500 ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट इज इंटरेस्टिंग upon conductor. So even though government is not directly giving him the property or directly giving him the possession of the property, but passenger is giving him the property on behalf of the government. Passenger उसे property दे रहा है government के behalf पे, इसलिए you can say that government is interesting upon the conductor. So इसलिए if the conductor pays less to the government, say he pays 250 or he pays no amount to the government, conductor will be held liable for criminal breach of trust. Clear है? Yes, sir. Thank you, sir. Fine. ठीक है. So this was in the year, ये wait, इसमें थोड़ा, हाँ ये, अब ये 72 में था and that सिक्किम हाई कोर्ट जजमेंट was in 78. वो बाद का जजमेंट है, but that judgment is wrong in law. That is erroneous judgment. Wrong in law, not a correct interpretation. Clear है? Is this clear, guys? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, यस सार्थक सर, बट जो पुष्पा कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम है सर, हमने एक ही लाइन लिखी है, प्रॉपर्टी शुड बी इंटरेस्टेड बाय एग्रीव्ड पर्सन। तो सर इसके अंदर इनका इंटरप्रिटेशन तो सही है, एग्रीव्ड पर्सन मतलब ओनर ही तो हो गया सर इसके अंदर। तो इंटरेस्टेड तो ओनर के द्वारा ही है ना, इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट ने किया है, इट्स जस्ट दैट डिलीवरी वहां से नहीं मिल रही। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शन इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू इट, ठीक है? ओके सर। सर तो एग्रीव्ड पर्सन की जगह ओनर होना चाहिए इस लाइन को सही करने के लिए। नहीं, मतलब बोल ये रहे हैं, बोल ठीक है, बोलने के लिए थ्योरेटिकली दे आर राइट, बट जो डिसाइड किया उन्होंने
ये उनका मतलब था कि पोजेशन, सो पोजेशन किधर से भी जाए, चाहे अग्रीड पर्सन से जाए या दूसरे से जाए, इट डजंट मैटर। फाइन फाइन, Okay, sir. ठीक है, तो ये है। यस यश। So, sir, in the exams, can we straight away mention the Somnath case डायरेक्ट without सोमनाथ, Okay. हाँ, यू कैन इग्नोर पुष्प कुमार, Okay, sir. डायरेक्ट सोमनाथ, ठीक है। यस जतिन। So what is the year of Somnath case? 1972, ठीक है, Okay, sir. 1972 है। अब आ जाओ, देखो, पहला तो इंटरेस्टेड, दूसरा है डोमिनेंट ओवर द प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज either that person is interested or that person has a dominant over the property. Now what does, या तो इंटरेस्टमेंट होना चाहिए या डोमिनेंट होना चाहिए। अब डोमिनेंट का मतलब क्या है, एक बार सेक्शन पे आ जाओ वापस, कम टू 405, कम टू 405, आर यू गाइस इन 405? Yes, sir. ठीक है, अब 405 पे क्या है, whoever being in any manner interested with the property or with any dominant over property. So what does this dominant over property mean? तो हमने इंटरेस्टमेंट तो पूरा चिट्ठी लिख दी, अब ये नई डोमिनेंट नई चीज आ गई। व्हाट डज डोमिनेंट ओवर द प्रॉपर्टी मींस? तो सही, डोमिनेंट में कुछ ज्यादा नहीं है, डोमिनेंट इज द बेसिक थिंग। व्हाट डज डोमिनेंट मींस? डोमिनेंट इज बेसिकली अ पर्सन इज हैविंग सुपरविजन, अ पर्सन इज हैविंग supervision over the property, or he exercises control over the property, or he has charge of that property. If any of these three things are met, so that person is in the dominant of the property. किसी को सुपरविजन है प्रॉपर्टी की, ठीक है, किसी को है someone is exercising control over the property, control over property, ठीक है। सो यहां पर एक्टिव इंटरेस्टमेंट नहीं है, बट ही हैज अ डोमिनेंट ओवर द प्रॉपर्टी और कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी। सी, नॉट ऑल केसेस कैन बी, नॉट ऑल थिंग्स कैन बी इंटरेस्टेड, राइट? सारी चीजें आप इंटरेस्ट नहीं कर सकते। इंटरेस्टमेंट में क्या होता है, पोजेशन छोड़ देते हो, सारी चीजों का पोजेशन नहीं होता। ऑल थिंग्स कैन नॉट बी पोजेस्ड, सो यू कैन हैव कंट्रोल ओवर सर्टन थिंग्स। सो वो इसमें आ जाती हैं। सो इफ यू आर एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर समथिंग, you are exercising control over something, or you are having charge of that property, you are having charge of that property, किसी चीज के ऊपर आपको चार्ज दिया क्या है, so in that case that is dominant, you can say that is dominant over the property. अब जैसे इस केस में एक केस ले लो, जैसे इसमें कि there was this every society had a inspector of water, मतलब एक एवरी एरिया, सोसाइटी नहीं, एवरी एरिया, एवरी सेक्टर, जैसे नोएडा में सेक्टर होते हैं, सो एवरी सेक्टर हैड अ इंस्पेक्टर ऑफ वाटर। फाइन, अब एक क्या थी, एक चीज थी जिसको बोलते थे हम वाटर टैक्स। सो दिस इंस्पेक्टर ऑफ वाटर यूज्ड टू एग्जामिन दिस वाटर टैक्स कि किन किन ने भरा है, who have paid this water tax, and people who have paid water tax, he used to allow the water supply only to them. जिन्होंने वाटर टैक्स पे किया है उनको ही ये भेजता था पानी, उनके ही घर तक पहुंचता था पानी। सो नाउ what duty he had, इसकी ड्यूटी क्या थी? The duty was to check the distribution of water. So the duty was check the distribution of water, to check the distribution of water कि पानी कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो चेक करने की ड्यूटी थी उसकी। फाइन, अब देखो यहां पर वाटर इज नॉट डायरेक्टली इन हिज पोजेशन। वाटर कैसे पोजेशन में हो सकता है उसकी? सो हियर वाटर इज नॉट डायरेक्टली इन हिज पोजेशन, इज नॉट डायरेक्टली इन हिज पोजेशन, इन हिज पोजेशन, ठीक है, इसकी पोजेशन में नहीं है वाटर। फाइन, बट यू कैन से दैट ही हैज डोमिनेंट ओवर द वाटर। डोमिनेंट है इसके पास, वाटर का डोमिनेंट है, सुपरविजन है, इतना पानी जाना चाहिए इनके पास, so he has this dominance over the water. So what does he do? He gives water dishonestly, after talking to some tenants, he gives water to those who have not paid
to those who have not paid water tax, who have not paid water tax. अब क्या करता है वो, डिसऑनेस्टली उन लोगों को पानी देता है जिन्होंने वाटर टैक्स भरा ही नहीं है. फाइन. सो ही हैज deliberately misappropriated water. बताइए 405 किक इन होगा या नहीं? 405 किक इन होगा या नहीं? यस सृष्टि. Yes, sir. Here 405 is taking because here is the domain of possession, domain over the property. ठीक है. Definitely here 405 will kick in. Here 405 will kick in. अब ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं which people who don't have the actual possession of the property but they have the dominion over the property, means that they have the supervision or control of the property. One such example is director of a company. Now director of a company is in a position of fiduciary nature, fiduciary position पे है, is in a position of control also. So director of a company, he has the dominion over the assets of the company, over assets of company. देखो एक्चुअल पोजीशन में चाहे शेयर होल्डर्स हो या चाहे अदर मेंबर्स हो और चाहे अदर डायरेक्टर्स हो, मतलब चाहे अदर एम्प्लॉइज हो, मैनेजर्स हो, but he has the dominion over the assets of the company. He has the entire supervision of the company. So if something happens or if he misappropriates if he dishonestly misappropriates these assets for his own use, तो इस केस में he will be held liable for criminal breach of trust. Now this particular thing that the director of a company has a dominion over the asset was held in Shiv Narayan Joshi versus State of Maharashtra. Shiv Narayan Joshi versus State of Maharashtra. This is 1980 in Supreme Court. Yes, Bhavani. Could you please show the video with that dominion, sir? Previous slide. This one. Yeah, this one. Yes, Shivan. So can you please repeat this director part? ठीक है. Now see, director has the control over the assets of the company. So he has the dominion over the assets of the company. उसके पास ऐसे पोजीशन में है कि उसको कंट्रोल है कंपनी के एसेट्स के ऊपर. He has the dominion over the assets of the company. So you can say that he is in a position, if say he misappropriates those assets for his own interest, then he will be held liable under 405, which is criminal breach of trust. ठीक है? Clear है? Is this clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Divya. Yes, Divya. सर ये कंस्ट्रक्टिव पोजेशन जैसा नहीं है, मैं मतलब दोनों में कंफ्यूज हो गई. डोमिनेंट. यस सर. डोमिनेंट अगर कंस्ट्रक्टिव जैसा भी हुआ तो भी यहाँ पर वो चोरी कहाँ कर रहे हैं? वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन की तरह ही मान लो, तो इसमें गलत क्या है? इसमें इट इज नॉट अ केस ऑफ थेफ्ट ना. ही हैज दिस पर्सन हैज द कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, किसी और ने सौंपी है उसको पोजेशन, तो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो एक्चुअल हो, उसके पास पोजेशन है ना. फाइन. इज दिस क्लियर? एसेट कंपनी का है. जब मैं बोलूँ सुपरविजन है तो चाहे आप मान लो वैसे कंस्ट्रक्टिव इसका मतलब नहीं है, सुपरविजन है, तो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, कंट्रोल हो, दैट आल्सो विल वर्क ना. यस यश. सर थोड़ा सा बस एक डाउट आ गया था सर, अगर डायरेक्टर का ही सारे एसेट्स हों सर, उसी की इन्वेस्टमेंट हो कंपनी में, तो भी अगर वो यूज करेगा तो नहीं, तो ओनर है ना वो. तो सर किसी में तो वो लायबल होगा ना, लेकिन तब भी अगर नहीं, वो ही विल बी एक्चुअली हेल्ड लायबल, बिकॉज तब भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में लायबल होगा, क्योंकि कभी भी डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होगा, कंपनी ही होगी. ठीक है? कंपनी और सेपरेट लीगल एंटिटी कौन सा है? यस सर. ठीक है. यस अंशिका. Sir, I just want to confirm one thing. Sir, entrustment and dominant can overlap because we have discussed some examples where the person was giving something to supervise and like. Definitely, they can. Okay, sir. They can. So when the property is entrusted to the servant, why won't it be criminal breach of trust? Riddhi, go to section 27. अभी वो section 27 पे. Yes, sir.
क्या दिख रहा है? पढ़ो जोर से, मुझे भी पढ़ाओ, मतलब मैं भी खोल ही रहा हूँ. Property in possession of wife, clerk or servant. When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. तो पोजेशन ट्रांसफर ही नहीं हुई ना, तो इंटरेस्टमेंट कैसे होगा? So this will be a case of constructive possession. Yep. Okay, sir. Thank you. दिस इज योर, आपका ये था डोमिनेंट. फाइन. अब डोमिनेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. डोमिनेंट में ये दिस डोमिनेंट कॉन्सेप्ट kicks in when a person is not able to when you cannot ascertain the possession. ascertain नहीं कर पाओगे पोजीशन, तब डोमिनेंट किक करता है कि किसके पास सुपरविजन, हु हैज द सुपरविजन ओवर द प्रॉपर्टी. सो नाउ दी एक इंटरेस्टिंग केस है. अब सपोज सच अ थिंग हैपेंस दैट एक ए बंदा है, देयर इज दिस ए. फाइन. ए गोज टू SBI टू प्लेज हिज गोल्ड आर्टिकल्स. अपने गोल्ड आर्टिकल्स गिरवी रखने के लिए वो SBI जाता है टू प्लेज हिज गोल्ड आर्टिकल्स. Fine. And SBI in turn gives him some money. Fine. After a while, he returns that money. अब SBI को जब पैसे वापस दिए तो गोल्ड आर्टिकल्स भी वापस देने चाहिए ना. So SBI gives him gold articles as well. ठीक है. A later finds out that जो गोल्ड आर्टिकल्स SBI ने दिए हैं, the gold articles which were given by SBI are not his gold articles, but they are defective. ठीक है, डिफेक्टिव है गोल्ड आर्टिकल, उसके गोल्ड आर्टिकल्स नहीं है. And he later finds out that his gold articles are misplaced. His gold articles are misplaced. उसके गुम कर दिए बेचारों ने, इसको चिपका दिए डिफेक्टिव. ठीक है. अब बताओ, एंड डिसऑनेस्टली मिसप्लेस किए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने ले लिया और इन्होंने खुद बेच दिए दूसरे किसी को. तो नाउ टेल मी, अब देखो इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है. कितने बोल रहे हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट दिस इज नॉट अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? नो वन ना. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट है, दिस आई आल्सो अग्री. बट द प्रॉब्लम इज यू कांट होल्ड द एंटायर SBI लायबल, राइट? सारे एम्प्लॉयज को थोड़े लायबल करोगे कि ए का बेचारे का गोल्ड ले गया है. You will have to hold liable to a person who has the dominance over the property, who was supervising over the property. अब सवाल ये है कि कौन सुपरवाइज. यहां पर अभी मतभेद हो गई. मतभेद ये थी कि they had this branch manager. ठीक है, there was this one branch manager, उसके नीचे there was accountant, and उसके नीचे there was this cashier. Now the question was whom to hold liable, branch manager, cashier और accountant. अब बताओ किसको लायबल करोगे आपके हिसाब से? थोड़ा सोच के बताओ. Yes भवानी. I think branch managers. ठीक है. Yes Yash. So same branch manager, because the whole and sole control of any branch is with him. So अगर कोई भी problem या कुछ भी हुआ है तो it is the main liability of the main owner. ठीक है. Yes शिवानी. सर आई डोंट हैव मच आइडिया, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अकाउंटेंट वुड बी लायबल, क्योंकि सर पैसे तो वही दे रहा होगा ना शायद. ठीक है. इसलिए ठीक है. Yes मानसी. Sir, branch manager, because branch manager will hold accountable. ठीक है. Yes Ahmed. Sir, I think it's accountant because he keeps the check and then he can also fabricate the same. ठीक है. See, अभी ये हमें कैपेसिटी नहीं देखनी किसकी कि ये फैब्रिकेट कर सकता है, इसकी ये कैपेसिटी है. हमें सिर्फ इतना देखना है कि हु इज इन द पोजीशन ऑफ कंट्रोलिंग और अंडर द पोजीशन ऑफ सुपरविजन. अब यहाँ पर कैशियर क्या संभालेगा? कैशियर इज अ माइनर फंक्शनरी. he is only concerned with what cash is coming in, what cash is going out. Accountant क्या संभालेगा? he is only concerned with the accounts of the company. he is also a minor functionary. पर जो प्रॉपर्टी प्लेस्ड हुई है, जो डिपॉजिट आया है, जो पैसे रख रहा है, उस सब का सुपरविजन आपके ब्रांच मैनेजर के पास रहेगा. इन दिस केस ब्रांच मैनेजर वाज हेल्ड लायबल. इसको लायबल किया गया था. फाइन, इज दिस क्लियर? Yes. ठीक है. यस मानसी.
Sir, I forgot to lower my hand. ठीक है, ज्यादा डीप तो नहीं जा रहा ना मैं 405 में, क्योंकि ये I'll tell you what cases are common in your common parlance. 405 is one case you will have to deal with day in and day out. 405, 378, ये 403, ये 3 केस डे इन एंड डे आउट वाले होंगे, मतलब आए दिन आपको इन सब से डील करना पड़ेगा। यस तनिष्का। सर हम ब्रांच मैनेजर की सीनियर को लाइबल नहीं करेंगे क्योंकि ब्रांच मैनेजर का रीजनल मैनेजर हुआ ना, वो तो पूरे रीजन चीफ को। मैनेजर भी होता है ना उसका सीनियर, क्योंकि सर वो ही हैज एवरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एवरीथिंग दैट। ब्रांच मैनेजर के ऊपर तो रीजनल मैनेजर हुआ ना, ब्रांच एक ब्रांच का मैनेजर हुआ ब्रांच मैनेजर, डीएम के ऊपर हुआ रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर तो पूरे रीजन का जनरल सुपरविजन है, स्पेसिफिक सुपरविजन थोड़ी है उसके पास। ओके सर, ठीक है। अब आ जाओ स्त्रीधन वाले केस पे। ठीक है, स्त्रीधन वाले केस पे। अब स्त्रीधन वाले केस में क्या है कि सपोज सच अ थिंग हैपेंस दैट W गेट्स स्त्रीधन, ठीक है, she gives H his स्त्रीधन, she entrusts स्त्रीधन upon H, and H misappropriates it, sells it, misappropriates it and sells it. बताइए CBT और नॉट CBT? वेट, किसी की माइक ऑन है? यस मानसी। Sir, it will be criminal breach of a trust because wife has completely entrusted the husband. ठीक है, fine. Povita says, what is Stridhan? Povita, Stridhan is the property which woman receives while she is getting married or which she has earned before marriage, and she is the absolute owner of that property. Okay. Yep, definitely this is a case of criminal breach of trust. And for the first time, this was held in 1997. It was Rashmi Kumar versus Mahesh Kumar. In this, it was held that, see, if husband misappropriates the property of Stridhan of the wife, which is entrusted upon him, then he will be held liable for criminal breach of trust. आपके हमेशा 498A के साथ ये लगता है और यही एलिगेशन लगती है। सो जब भी 498A होता है, 405 आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। सो दिस इज राकेश कुमार वर्सेस महेश कुमार भाड़ा। महेश कुमार भाड़ा, महेश कुमार भाड़ा, एंड दिस इज 1997। ठीक है। नाउ इट वाज held that entrustment of Stridhan with the dominant so it was held that if husband entrusted with Stridhan uses for his own use, he will be held liable under section 405। ठीक है, he'll be held liable for। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि सपोज देयर इज ये लिख लिया आपने? यस सर। सो 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, लेट्स प्रोसीड। बढ़े आगे? लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है। अब ये आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस, पुट इट इन द चैट बॉक्स। अब थोड़ा सोचो। दिस इज H एंड देयर आर H's इन लॉज, सॉरी दिस इज H एंड दिस इज W, एंड ये W के इन लॉज है। एक सेकेंड, ये कहाँ हो गया? ये W के इन लॉज हैं। ठीक है, ये W के इन लॉज हैं। फाइन। नाउ W लीव्स H एंड इन लॉज, दोनों को इन लॉज को छोड़ देती है। She goes to her own place
and but the property of W is with them. इनके पास प्रॉपर्टी है, and these guys are refusing to give back the property. Refusing to give back the property. W is asking them to give back the property, refusing to give back the property. W बार बार पूछे जा रही है कि दे दो दे दो दे दो, मना कर रहे हैं. Now इनके W के से ऑर्नामेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स उनके पास हैं, से ऑर्नामेंट्स हो गए, अदर प्रॉपर्टी हो गई. टेल मी, CBT और नॉट? टेल मी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और नॉट? यस तनिष्का. नो सर, आई थिंक क्योंकि प्रॉपर्टी कन्वर्ट या फिर मिसप्लेस नहीं हुई है, और रिसेंटली एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है कि इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी विद द इन-लॉज फॉर सिक्योरिटी डज नॉट अमाउंट टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ठीक है, बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग तो बट अगर रिफ्यूज करें तो, यहाँ तो रिफ्यूज किया ना उसने. ठीक है. यस शिवानी. सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, आप प्लीज रिपीट कर देंगे? हाँ जी. क्या हो रहा है कि W चली गई अपने इन-लॉज से बाहर, हस्बैंड है और उसके इन-लॉज हैं. W की प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स और ये इन-लॉज के पास ही है. W मांग रही है कि मुझे वापस दे दो मेरे ऑर्नामेंट्स और मेरे जेवरात और सब सामान मुझे दे दो. हस्बैंड और इन-लॉज मना कर रहे हैं. बताइए वेदर इट इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और नॉट. सब बोल रहे हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ठीक है. यस, द आंसर इज करेक्ट. दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. This is a clear case of misappropriation because they are setting apart the property for their own use. So that is the reason, because they are not refusing to give, because they are completely refusing to give her. So they are setting apart the property for their own use. And there is a Supreme Court judgment on this, which is Pratibha versus State. Yes, Tanishka. Sir, वही I wanted to ask about the judgment. है ना judgment? Supreme Court सर judgment. तो उसमें I like recently अभी I read कि interesting for safeguarding. The in-laws said कि they have it for the safeguard, for the safety of the jewelry and that is different. That is different. यहाँ पर तो reason ही नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ refuse कर रहे हैं. That is a different issue ना. अगर dishonest misappropriation नहीं हुआ तो नहीं है. ठीक है. So this is Pratibha versus State, 1988, Supreme Court. Fine. And here it was held that refusing to return ornaments and clothes of wife, refusing to return ornaments and clothes of wife will amount to criminal breach of trust. To criminal breach of trust. To CBT. ठीक है. अगर आपने क्लोज और ये सब भी रिफ्यूज कर दिया, इट विल अमाउंट टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ठीक है. इज दिस क्लियर? क्लियर हो यहां तक? यस सर. ठीक है. अब देखो, दिस थिंग दैट यू हैव टू बेयर इन माइंड दैट mere negligence is not dishonesty. किसी ने नेग्लिजेंटली कोई काम किया, कोई यूज किया कोई प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट डिसऑनेस्टी. सो मियर नेग्लिजेंस विल नॉट अमाउंट टू डिसऑनेस्टी. सपोज कोई बंदा था, आपने एक मैनेजर है, आपने उसे एक प्रॉपर्टी संभालने दे दी, यू हैव गिवन हिम द डोमिनेंट ओवर द प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट हैपेंस दैट he sold it and say he wasn't able to maintain the property properly, and ultimately the property reserved a lot of damage was caused to the property. Fine. So he had to sell it at a lesser rate ultimately. So now you cannot say that this is dishonesty is involved. So mere negligence will never amount to dishonesty. Is not dishonesty. Your dishonesty will be as per 23 and 24. ठीक है. सिर्फ साधारण नेग्लिजेंस डिसऑनेस्टी नहीं होगी, आपको डिसऑनेस्टी हमेशा 23 और 24 के बेसिस से जज करनी है. फाइन. अब हमारा एक और सवाल आ जाता है. अगेन अनदर क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. विद दिस वी विल बी डन विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. एक्सप्लेनेशन 1 और 2 बाकी है, दैट वील रीड. स्टार्ट करूं? ये क्लियर है ना? आगे बढ़े? यस जी सर.
criminal breach of trust and partnership again. Whether there can be criminal breach of trust in partnership property. ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप में गेम यही है कि बोथ आर ओनर्स. ठीक है, बोथ आर ओनर्स. सपोज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. आइडियली तो देखो बोथ आर ओनर्स नॉर्मल है. इफ इट इज अ नॉर्मल पार्टनरशिप, so as per Veli ji Raghav ji, there is no entrustment, both are owners, so there won't be a case of criminal breach of trust. But what if there is a special contract? What if एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है कि ये गाड़ी का तू ख्याल ऐसे ही रखेगा एंड ऐसे ही होगा, ये चीजें ऐसे ही चलेंगी. If a special contract is made which carves out an entrustment and which carves out the liabilities and rights in a different manner, in that case criminal breach of trust will apply. उस केस में criminal breach of trust will kick in. Now this was held in अनिल सरन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. उसमें बोला था कि अगर आपके पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनरशिप का, ऑर्डिनरी, if it is ordinary partnership, there cannot be criminal breach of trust. But if the partnership is, say, a special contract is there, wherein rights and liabilities of both the partners are segregated, अलग अलग की गई है rights and liabilities, और प्रॉपर्टी भी थोड़ी अलग अलग की गई है. If there is a special contract of such as a contract of partnership, then in that case criminal breach of trust may kick in. ठीक है, सो ये हेल्ड हुआ था आपका अनिल सरन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. अनिल सरन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. अनिल सरन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. Fine. This is 1996 judgment, Supreme Court. ठीक है, अब उसमें पहले तो चीज ये थी कि पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी. ठीक है, पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप में क्या हो रहा है? पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी ना, इज नॉट अ लीगल एंटिटी. लीगल एंटिटी थोड़ी है, पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी. फाइन. all partners have common dominion over the property, have common dominion over the property. Common control है सब partners का, have common dominion over property. Dominion over property. Over property. ठीक है, over property and funds of the firm. ठीक है, फंड के फॉर्म्स में और डोमिनेंट में कॉमन है. सो ओनली आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जब सेटल हो जाते हैं अकाउंट्स, तभी आप बोल सकते हो कि इसका हिस्सा इतना है और अलॉटमेंट होता है, मतलब तब एक बंदा ओनर बनता है. सो ओनली आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सो ओनली आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ओनली आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड allotment, only after settlement of accounts and allotment of shares, the partner becomes owner. ठीक है, पार्टनर ओनर बन जाता है. अलॉटमेंट के बाद ही ओनर होता है. ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन इज, अगर ऐसी नॉर्मल पार्टनरशिप है, देन देयर कैन नॉट बी इंटरेस्टमेंट. If this ordinary partnership is there, there can never be an entrustment. But person can be entrusted, a partner can be entrusted. A partner can be entrusted. ठीक है, a partner can be entrusted only through a special contract. Only through a special contract. एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है, क्लियरली सबकी लाइबिलिटीज डिसाइड कर दी है, इनको बोला है कि भाई देख, इतना लॉस हुआ तो मैं इतना ही भरूंगा, इतना लॉस हुआ तो तू उतना ही भरेगा. सो इफ देयर इज इंटरेस्टमेंट ओनली थ्रू अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड सच प्रॉपर्टी विल बी हेल्ड बाय हिम, देन सच प्रॉपर्टी, अ पार्टनर कैन बी इंटरेस्टेड ओनली थ्रू अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड द प्रॉपर्टी
will be held by him in fiduciary capacity. ठीक है. If he misappropriates it, if he misappropriates क्या हो रहा है? If he misappropriates, he will be held liable under section 406. मतलब he will be held liable for CBT. If he misappropriates, he will be held liable for CBT. For CBT. That is criminal breach of trust. ठीक है. So this is only in the cases of special contract. ये वाला arrangement applicable रहेगा. ठीक है. Sir, can you please read this once again? ठीक है. A partner can be interested only through a special contract, and the property will be held by him in fiduciary capacity. If he misappropriates, he will be held liable for criminal breach of trust. ठीक है. ऊपर वाले में partnership is not a legal entity. पहला, all partners have common dominion over property and funds of the firm. Only after settlement of accounts and allotment of shares, partners become owners. ठीक है. Clear? Is it clear? Yes, sir. ठीक है. Yes, yes. सर इसका क्या सेंटेंस का मतलब हुआ? पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी का? लीगल एंटिटी नहीं है ना. पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर वन एंड द सेम थिंग. इट्स नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ओके सर. ठीक है. ठीक. फाइन. तो ये है आपका पार्टनरशिप एंड ये. अब नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इन 405 the words that are used in 405 the words that are used is property. In 403 the words that were used was movable property. In 403 it was used movable property. In 405 it was used property. Now the question is ki whether 405 is applicable to both properties, movable or immovable. बताइए आप लोग. What do you guys think? Yes, sir. Applicable to both movable and immovable. Yes, Bhavani. Yes, sir. Applicable to both. Yes, Shivani. Yes, sir. I also think the same, that it's applicable to both movable and immovable. Yes, it is applicable to both movable and immovable. And this was also held by the Supreme Court in R.K. Dalmia versus Delhi administration. R.K. Dalmia versus Delhi administration. कोर्ट ने बोला कि ये दोनों में अप्लाई होगा, मूवेबल एंड इमूवेबल एडमिनिस्ट्रेशन. एंड दिस इज 1962. फाइन. बोथ करेक्ट. अब आ जाओ आप एक्सप्लेनेशन 1 पे. अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन 1 and 2 पे. बोथ आर सिमिलर. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. बोथ आर ऑन सिमिलर लाइंस. एक्सप्लेनेशन 1 और 2 पे है. बोथ आर ऑन सिमिलर लाइंस. फाइन. यस दिव्या. सो वो केस का नाम फिर से बता दीजिए प्लीज. आरके डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1962. थैंक यू सर. ठीक है. आ जाओ एक्सप्लेनेशन 1 and 2 पे. आर यू गाइस इन एक्सप्लेनेशन 1? यस. ठीक है. एक सेकंड. अच्छा गाइस, कल हमारा लेक्चर है ना आईपीसी 2 o'clock अराउंड 2 to 2:30 अराउंड रहेगा. ठीक है. तो दुखी मत हो, हमें खत्म करना है सिलेबस. ठीक है. कम टू एक्सप्लेनेशन 1. एक बार एक्सप्लेनेशन 1 पे आ जाओ. A person being an employer of an establishment, whether exempted under Section 17 of Employee Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 or not, who deducts employee contribution from wages payable to the employee for credit to a provident fund,
or family pensions fund established by any law for the time being in force shall be deemed to have interested with the amount of the contributions so deducted by him, and if he makes default, अगर default करते हैं in the payment of such of the funds in violation of the said law shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of the direction of law as aforesaid. ठीक है, तो अभी देखो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में दोनों लॉज अलग हैं, एसेंस सेम है. अब इसमें जो लॉ है, एक्सप्लेनेशन 1 में जो लॉ है, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ जिसको बोलते हैं ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट. सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया. अब यहां पर जो लॉ है आपका, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड. सो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, दोनों का एसेंस एक है. अब इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दीज केसेस इज व्हेन एन एम्प्लॉय गेट्स सैलरी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको सैलरी मिलता है. सपोज द एम्प्लॉय, दिस इज ए इज द एम्प्लॉय, वेट, ई इज द एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर हो गया एंड ये एम्प्लॉय है. फाइन. Whenever an employee gets the salary, say he is getting 1,000 rupees, so इसमें से 10 rupees will go to employee provident fund and 10 rupees will go to employee state insurance. ठीक है, 10 रुपए उसको जाएंगे प्रोविडेंट फंड के, 10 रुपए जाएंगे स्टेट इंश्योरेंस के. अब ये काटता है एम्प्लॉयर, दिस अमाउंट is deducted by employer. ठीक है. So now here what are they doing in both the section? They are deeming the employer to be interested of this 20 rupees. So they are deeming the employer to be interested. Deeming to be interested कि ये जो 20 रुपए के लिए interested है employer. Now once the employer deducts this amount, he has to पुट इट इन द कॉन्ट्रीब्यूशन फंड. ऐसा नहीं कि डिडक्ट करके छोड़ दिया. आप 20 रुपए अपने एम्प्लॉय की पगार से काटोगे और ये 20 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन में डालोगे. सपोज एम्प्लॉय ने ये कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं डाले, he does not put it in the contribution. Suppose this employer does not put it in the contribution. In that case, the section also deems that he would have deemed to have used this amount, dishonestly. आपने पैसे काटे एम्प्लॉय के इंश्योरेंस या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए, and you did not pay into the contribution fund. You have deducted the amount for employee provident fund or employee insurance, and you have not paid it to the contribution. In that case, we are deeming two things. First, we are deeming that the employee is interested of this amount, कि 20 रुपए के लिए employee is interested. Second thing, we are deeming that employee has used this amount dishonestly. So in this case, 405 will kick in. So explanation 1 and 2 are deeming provisions. So you can say your explanation 1 and 2 are deeming provisions. ठीक है, deem कर रहे हैं एक चीज होने को. They are deeming provisions. They are creating a legal fiction. They are deeming that the person is interested, and they are also deeming that if he hasn't paid the amount, the employer is interested. Second thing, they are deeming that if he hasn't paid the amount, then in that case, he has dishonestly used it for his own purpose. Okay, is this clear? Ye clear hai? No, not clear. So what you said, the last point, the deemed. Deemed, he has used it for his own purpose. Second point. ठीक है, देखो किसको नहीं समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes sir. ठीक है, I'll repeat it once. एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सपोज सी एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर है, ठीक है. अब एम्प्लॉयर सैलरी देता है एम्प्लॉय को. अब whenever he gives the salary,
ही डिडक्ट्स 2 अमाउंट्स, 2 अमाउंट डिडक्ट करता है। एक होता है कि भाई इंश्योरेंस का अमाउंट, क्या तुम्हारी इंश्योरेंस मैं भरूंगा। दूसरा है प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, कि प्रोविडेंट फंड मैं भरूंगा। फाइन। अब ये डिडक्ट तो करता है, बट ही हैज आल्सो द इक्वल ड्यूटी टू पुट इट इन द कंट्रीब्यूशन फंड। आप डिडक्ट कर रहे हो, आपको कंट्रीब्यूशन फंड में भी डालना है ना, कि एंड में इसको मिल सके। जिस तरह आप ऐसे डिडक्ट करके अपने पास थोड़ी रखोगे, आपको ये कंट्रीब्यूशन फंड में डालना है, जो इंश्योरेंस स्कीम में है, जो एक्ट में है, दोनों भी। सो आप डिडक्ट करके ये कंट्रीब्यूशन फंड में डालता है। तो इसमें सिंस ही इज डिडक्टिंग, तो हम इसको मानेंगे कि ये जो इंटरेस्टेड है ये कुछ अमाउंट का, जो अमाउंट डिडक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर से द सैलरी इज 1000 रुपीज और उसमें से ये 20 रुपए काट रहा है इंश्योरेंस की और 20 रुपए प्रोविडेंट फंड के, तो हम बोलेंगे कि ही इज इंटरेस्टेड फॉर ₹40। मतलब एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट किया है उसको 40 रुपए के लिए। नाउ इफ ही डज नॉट पुट इट इन द कंट्रीब्यूशन फंड में डालता ही नहीं है पैसे, 20 रुपए आपके काटता है, खुद ही रख रहा है, इन दैट केस you will deem that this fellow is dishonestly using. So you will deem that this person is dishonestly using it. Clear है? अब क्लियर है? तो इसमें 405 किक इन करेगा। Now it's clear, right? Yes sir. ठीक है, तो ये थोड़ा लिख लीजिए so that प्रॉब्लम ना हो। So लिख लेते हैं, let's write it. So this is explanation 1 and 2. Both are deeming provisions. And what is happening? The employer of an establishment who deducts employees contribution, who deducts employees PF, provident fund, from the wages payable, ठीक है, payable shall be deemed to be interested, पहला है he shall be deemed to be interested, ठीक है। So the employee of an establishment who deducts employees PF, that is provident fund, from wages payable shall be deemed to be interested. Second है कि in default of payment, it shall be deemed that he has dishonestly used. ठीक है, उसने डिसऑनेस्टली यूज किया है। ये क्लियर है? ये Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये है दोनों में, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 दोनों में है यही चीज। ओनली द एक्ट इज डिफरेंट, द कॉन्सेप्ट इन बोथ द सेक्शन इज सिमिलर। फाइन, विद दिस वी आर डन विद 405। सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज। हाँ जी। सीमा आप क्लियर हो गया ना? आपको ही नहीं समझ में आया था ना? हाँ सीमा, आप क्लियर हो गए ना? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आ जाओ, with this we are done with 405. अब आते हैं punishment clauses पे। Let's go on to punishment clauses and let's get done with it. आ जाओ 406 पर। Are you guys on 406? Yes sir. Yes, 406 पे आ जाते हैं। So now see, 405 defines what is CBT, that is criminal breach of trust. The punishment of CBT, so 405 defines CBT, that is criminal breach of trust. The punishment of CBT, that is 406 में punishment है। The punishment is 3 years or fine or both. So पहली punishment है 3 years, fine or both. Fine.
फिर है दूसरा 407। अब यहां पर है कि इंटरेस्टमेंट किनको दी है. देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटरेस्टमेंट दैट इज बीइंग हैपनिंग हियर. सो द प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड. फर्स्ट इट इज इंटरेस्टेड टू अ कैरियर. Second, it is interested to a war finger. Third, it is interested to warehouse keeper. ठीक है. So there are three peoples to whom the property is interested. अब carrier देखते हैं. Carrier में क्या है? Who is the carrier? See, अब carrier is the person who undertakes the transporting of goods. So जो बोलते हैं कैरियर्स एंड मूवर्स, वो कैरियर्स एंड मूवर्स एंड पैकर्स, सॉरी, वो कैरियर्स एक होते हैं ना, कैरियर्स सो एंड सो कैरियर लिमिटेड. सो दीज आर द गाइज हु अंडरटेक ट्रांसपोर्टिंग वर्क. इनको आप सामान देते हो ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ठीक है. नाउ व्हाट आर वॉर फिंगर्स? नाउ वॉर फिंगर्स क्या होता है कि see war finger is a person who keeps wharf. जो wharf है वो रखना, जो भी वो रखता है ना wharf, he is known as war finger. Now what is wharf? See, wharf on the shore, ये suppose shore है, ये यहाँ पर बोट आती है, ये बोट है, बोट्स हैं, और यहाँ पर शोर है. शोर पर साइड में जो गोडाउन्स रहते हैं, those are known as war finger. So these are sort of godowns on the shore. So these are landing stage built on shore. So landing stage built on shore. जो आपका शोर है ना, शोर पर जो लैंडिंग स्टेज, सामान रखने के लिए जगह थोड़ी सी बनाई जाती है. So that is known as wharf. That is known as wharf, and the person who is managing that wharf is known as wharf finger. So if you have given entrusted your goods to a person who is a carrier, war finger, or a warehouse keeper तो पता ही है, the one who keeps warehouses जो रखता है. इन तीनों में से अगर आपने किसी को भी दिया and that person has committed criminal breach of trust, in that case the punishment is slightly higher. अब slightly higher इसलिए है because they have the duty to preserve the goods. So इसके लिए इनके केसेस में punishment थोड़ी ज्यादा है because they have a active duty to preserve the goods. So if the punishment is given, मतलब if less punishment is given, so problematic situation हो जाएगी. Every carrier or war finger may indulge into such practice and convenience of business may be disrupted. So इसलिए इनके लिए जो punishment है that is 7 years. So the first is 7 years and which and shall also be liable with fine. Clear है? Is this clear? Yes sir. अब आ जाओ 408 पे. अब का 408 में क्या हो रहा है? 408 में it is a criminal breach of trust by clerk or servant. अब see, there may be specific cases in which there may be a criminal breach of trust by clerk or servant. So in that case, or any person who is in such a capacity, so in that case again the punishment will be 7 years. यहाँ पर भी 7 साल punishment है. Yes तनिष्का. सर यहाँ पे हम पनिशमेंट बढ़ा रहे हैं तो हम नेग्लिजेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लेंगे कि नेग्लिजेंस नहीं, अगर मेयर नेग्लिजेंट है तो फिर तो हम नहीं चार्ज करें ना. डिसऑनेस्टली तो प्रूव कर 405 के एलिमेंट्स तो सब में ही प्रूव करने होंगे. ये तो एग्रीवेटेड फॉर्म्स है. 405 तो बेसिक तो प्रूव करना ही होगा ना आपको. ठीक है. यस मानसी. सर इसमें 27 एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा? जैसे कंस्ट्रक्टिव पोजीशन आ गया तो इंटरेस्टमेंट हो गई. 27 एप्लीकेबल होगा बट इसमें 27 ये एक ऐसा केस होगा जिसमें ही इज नॉट होल्डिंग ऑन अकाउंट ऑफ हिम. मतलब 27 अगर आप पूरा पढ़ोगे, 27 में एंड में लिखा है ना कि होल्डिंग ऑन अकाउंट ऑफ हिम. सो देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर इन इवन इफ ही इज गिविंग द प्रॉपर्टी टू द क्लर्क और सर्वेंट, ही हैज एब्डिकेटेड द पोजीशन. उसने अपनी पोजीशन नहीं रिटेन की. ऐसी भी चीजें हो सकती हैं. वो बोलते तुम अपने हिसाब से देख लो, मैं आऊंगा तब करूंगा. So in that case it can fall under criminal breach of trust. ओके सर. सर अगर आपको सही लगे तो एक एग्जांपल नॉर्मल से दे सकते हैं? हाँ श्योर. कि सपोज किसी ने वो मूवी देखी है वेट,
कौन सी थी, गरम मसाला। गरम मसाला देखिए किसी ने? यस सर। अब गरम Yes, मसाला sir. में एक बंदा है, वो यूएस में रहता है। वो बोलता है दिस फेलो इज माय, ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालिक है, और इसने घर सारे यहाँ पर इंडिया में वॉट एवर हाउसेज ही हैज, सो ही हैज आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ दोस हाउसेज, और he tells me that whatever you want to do with these houses you can do. So now here the person has not retained the constructive possession because he is giving him liberty to do whatever he wants. So he has not retained the control. वो बोल रहा है कि जो करना है कर, तो वो उसको देता है ना, अक्षय कुमार को उसमें हाउस देता है. So here he has not retained the control. So unless he has not retained the control, so तो ये सर्वेंट फॉल भी नहीं करेगा उस कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के एम्बिट में. फाइन. Yes, Yes. yes, Mario. So here the property can be sold also. Yeah, sold also, na. Convert or misappropriate. It can be sold also. Okay, sir. ठीक है. If it is sold, then it is criminal misappropriation. ठीक है, fine. ठीक है, आगे बढ़े. तो this is your 408. अब आ जाओ 409 पे. अब ये सबसे ज्यादा नॉर्मल है हमारे देश में. तो 409 is when the dominant or the entrustment is to a banker, or to a merchant, to a factor. banker तो पता ही है, और to a factor, ठीक है, और to a broker, or to a attorney or agent. attorney or agent. ठीक है. अब इसमें आपकी पनिशमेंट होगी 7 साल. ठीक है. Factor is also a person who negotiates on behalf of you. He is sort of a middleman जो negotiate करता है. मोस्टली बैंक्स में रहते हैं जो फैक्टर्स होते हैं, वो बैंक्स में रहते हैं. दे negotiate on your behalf. तो अगर इन्होंने इंटरेस्टमेंट किया है तो आपको हो जाएगा, इसमें 7 years है, इसमें भी 7 years है. This also will fall under, sorry, इसमें 10 years है. This is the highest punishment. Sorry. Yes, 10 years. Sorry, this is life imprisonment. This is the highest punishment. Life imprisonment, 10 years or 10 years and fine. This is the highest punishment. ठीक है. और ये हमारे देश में सबसे यूजुअल जो 409 लगता है, यूजुअल जो प्रोविजन लगता है कोर्ट्स में, दैट इज 409. द रीजन ये लगता है क्योंकि इसकी पनिशमेंट ज्यादा है एंड केसेस फॉल इजीली अंडर 409. Most people whom you are entrusting are agents, so it becomes easier to fall under this category. One more category is there in this, that is public servant. ठीक है. With this we are done with criminal breach of trust. Sir, your factor मतलब? Factor means a person who negotiates on behalf of you. ठीक है. He takes the risk on behalf of you also. Factor. Yes, Bhavani. Sir, please could you tell an example regarding public servants? Public servant के तो कितने examples हैं? Like, yeah, conductor was a public servant. A conductor of, say, a bus, which is Gujarat State Transport. So conductor यहाँ पर public servant हो गया. कंडक्टर को पैसेंजर ने पैसे दिए, कंडक्टर ने पैसे गवर्नमेंट को नहीं दिए. 409 किक्स इन. एनी पब्लिक सर्वेंट. फाइन. ऑक्शन हुआ. What will happen for 405? 405 is the definition clause, ना. 405 defines punishment. 406 से स्टार्ट होती है. Okay. First punishment in ordinary cases is 406, aggravated is 407, 408, 409. तो इसमें 409 आप डालोगे. ठीक है. ट्रैफिक पुलिस ऑल्सो. ट्रैफिक पुलिस ऑक्शन में भी, ऑक्शन में अगर किसी ने ऑक्शन के पैसे किसी उसने कर दिए तो भी. सर कैन यू प्लीज रिपीट नेग्लिजेंस व्हेन द क्लास इज ओवर. mere negligence will not amount to dishonest intention. Mere negligence is not dishonest intention. Suppose एक मैनेजर को बोला गया था कि ये प्रॉपर्टी है, दिस हैज टू बी यूज्ड इन दिस मैनर ओनली. अब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने नेग्लिजेंटली
ही डिड नॉट यूज इट इन दिस मैनर, बट इसने डिसऑनेस्टली नहीं किया, नेग्लिजेंस हो गई उससे। से उसको बोला गया था कि आपको ये प्रॉपर्टी कभी भी आपको ये प्रॉपर्टी कभी भी आप डील करोगे ये प्रॉपर्टी के साथ, कभी भी इस प्रॉपर्टी को बैचलर्स को रेंट नहीं देना। अब एक बंदा आया, ही इंक्वायर्ड, ही अपीयर टू बी मैरिड, सबसे इंक्वायरी की, जब उसने रेंट पर दिया उसको पता चला कि दिस फेलो वाज डिवोर्सिंग। सो नाउ यू कैन नॉट से दैट दिस इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिकॉज़ ही डिड नॉट एक्ट डिसऑनेस्टली। ठीक है, उसने भले वायलेट किया कॉन्ट्रैक्ट आपका, बट ही डिड नॉट एक्ट डिसऑनेस्टली, दिस वाज अ नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, कि और ज्यादा ड्यू डिलिजेंस कर सकता था, बट दिस इज नॉट अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। कुछ डिसऑनेस्टली किसी का रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन करने के लिए तो नहीं था। क्लियर है? ठीक है, यस यश बताइए। सर मेरे को सर डाउट इतना ही सा था कि जैसे सारे मोस्टली जो भी हम लोग नेम्स ले रहे हैं जिसमें मतलब यूजुअली ये केस लाया होता है, तो वो तो और अलग अलग सेक्शंस में आ रहे हैं, आफ्टर 407 में, 8 में, 9 में। तो सर 406 में सर कैसे केसेस फॉल करेंगे? सारे मतलब सारे नहीं, जैसे कैरियर 407 में आ गया, ये क्लर्क और इसमें आ गया, नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी हस्बैंड वाइफ केस 406 में आ जाता है। और सर जैसे फिर स्त्रीधन वाला सर वो अभी लगा, जैसे सर फॉर्मल पार्किंग वाला आपने बताया था, सर वो भी इसी में आएगा वो फॉर्मल? हाँ, वो ये वॉर फिंगर नहीं, इसमें ये पार्किंग वाला किसी में नहीं आएगा, पार्किंग वाला इसमें भी नहीं आएगा, एजेंट भी नहीं है ना। तो सर 406 में तो आएगा ना वो 406 में आएगा। हाँ, तो यही पूछना था। हाँ, 406 इज रेसिडुअरी, स्पेसिफिक अगर है तो ये स्पेसिफिक में आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, स्त्रीधन वाला इधर आ जाएगा 406 में। ओके सर। ठीक है, वैसे स्त्रीधन में कोशिश यही रहती है कि 409 लगे, एंड फॉर दैट दे ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट हस्बैंड इज द एजेंट ऑफ द वाइफ। अब रीजन ये इसलिए करते हैं क्योंकि 409 इज नॉन बेलेबल। ठीक है, इट इज नॉन बेलेबल, और 403 इज बेलेबल। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी केस आए 406 इज ऑल्सो बेलेबल ही है, सॉरी बेलेबल नॉन बेलेबल ही है, बट हम कोशिश करते हैं 409 में आ जाए, केस थोड़ा तगड़ा बनेगा। Yes, the punishment is stringent over there. Stringent. Yes, Anshika. Sir, in the question, if it is not written that wife has given the entrusted her stridhan to her husband, then we will imply that he has been interested. You will have to see how it is worded. आपको देखना पड़ेगा कि कैसे worded है। अगर उसने बोला कि ख्याल रखना मेरे सामान का, तो then it is interested. सर एक क्वेश्चन था मतलब LMS पे, सर थेफ्ट के अंदर, सर इट द क्वेश्चन वाज दैट द हस्बैंड ऑफ B gives away her stridhan to C. Here A, sir, option was is guilty of theft, is not guilty of theft, is guilty of criminal misappropriation of property, or This is criminal breach of trust है तो। Sir, okay, sir, the answer was given theft, so we got confused. A has given his A has given the property, ना? Sir, yes, sir, the husband of B gives the property, gives her stridhan to C. ठीक है, तो अब ये हाँ, यहाँ पर इंटरेस्टमेंट का गेम ही नहीं है ना, यहाँ पर है ही नहीं गेम इंटरेस्टमेंट का। इट विल बी थेफ्ट ओनली, थेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्टमेंट दिया ही नहीं ना उसने, स्त्रीधन उसका था, उसने उसको दे दिया, यहाँ पर गेम ही नहीं है ना स्त्रीधन का। वो उसके कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में नहीं रहेगा, मतलब एक बार आप क्वेश्चन भेजो, लेट मी चेक द क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा इलस्ट्रेशन ओ जैसा लग रहा है सेक्शन 378 की। कौन सा इलस्ट्रेशन ओ? वो हाँ जी सर, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है क्योंकि उसमें इलस्ट्रेशन ओ में सीधा सेक्शन 27 एप्लीकेबल हो जाता है ना। ठीक है, यहाँ पर उतना वो नहीं है लेवरेज। सर एक और डाउट था, पूछो। सर आपने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि वेयर M is going to Delhi and he is asking his servant to take care of his car, and sir you told us that this is a case of the casual entrustment. तो सर यहाँ पे अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं लगेगा और ये थेफ्ट हो जाएगा, सर ये सर्वेंट सेम नहीं हो जाएगा सर 27? हाँ, तो 27 है ना, तो 27 आ जाएगा ना, तो दिस वोंट बी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं रहेगा ना, पोजेशन है ना उसके पास ही। 27 से तो पोजेशन आ रही है ना उसके पास। ए गया दिल्ली, ए इज इन दिल्ली, सर्वेंट है मुंबई में, सर्वेंट मुंबई में, ठीक है।
ए ने अपनी कार दे दी सर्वेंट को, फाइन। अब 27 के हिसाब से पोजेशन किसके पास है, सर्वेंट के पास है या ए के पास है? सर ए। हाँ, तो इंटरेस्टमेंट कैसे हुआ? सर सर्वेंट थेफ्ट के लिए लायबल होगा इसमें। हाँ, अगर उसने ली आउट ऑफ पोजेशन तो थेफ्ट के लिए लायबल होगा, अगर उसने चला के कहीं लेके गया तो थेफ्ट के लिए लायबल डेफिनेटली। ठीक है, ओके सर। ठीक है। यस भवानी। Sir, I have a question regarding the trust by criminal हाँ breach of trust by public servant. हाँ Like, so government allotted some amount to for the sake of public work, and that public servant uses फॉर हिज ओन यूज। for his own use and showed that on the documents that I have done that work. Then criminal he breach will of be trust, liable for criminal breach of 409. Okay. criminal 409। There will be some provisions for corruption also, sir. फॉर्जरी के लिए रहेगा, उसके लिए करप्शन के लिए हाँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो अलग रहेगा उसमें, बट आईपीसी के हिसाब से 409 will kick in। So we can apply 409 and there will be special provisions under corruption act. Yeah, perfect। Okay, thank you. Yes, तनिष्का सर। मुझे अभी भी उस वाले एग्जांपल में डाउट है कौन सा? जो आपने बताया था कि हस्बैंड एंड वाइफ वाला, जहाँ पे उसने जो हस्बैंड के क्लोथ्स है वो किसी और को दे दिए थे, तो जो पर्सन सी था उसको हमने थेफ्ट के लिए लायबल किया था और वाइफ को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। बाद में आपने कहा था कि अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं लगेगा। तो सर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं लगेगा तो थेफ्ट भी नहीं लगेगा ना फिर उस पर्सन सी पे? किस पे? ये कौन सा हम पढ़ रहे हैं? आपने 7-8 चीजें आप मिक्स क्यों कर देते तनिष्का? सर अब कौन सा बताओ, अब एक एक करके बताओ मुझे। तो आपने एक एग्जांपल अभी अंशिका का मिक्स किया और पहले वाला अपना ले लिया, तो दोनों क्लब कर दिया, है ना? नो सर, वो तो क्या किया बताओ मुझे एक बार, स्लो बताओ। हाँ सर, हस्बैंड एंड वाइफ थे तो उसने हस्बैंड के क्लोथ्स वाइफ ने एक थर्ड पर्सन को दे दिए जो सी है। ठीक है, तो ये तो हुआ ना, ये तो थेफ्ट है अगर अनऑथराइज्ड है, शी इज नॉट ऑथराइज्ड एंड शी नोज, तो ये तो थेफ्ट है, तो इलस्ट्रेशन ओ में सीधा आ गया। यस सर। गेम तो ओवर। ये एग्जांपल फिर एक और बार पूछा था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन अगर नहीं होगा सॉरी सर, तो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं लगेगा। डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होगा तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होगा, थेफ्ट भी नहीं होगा। यस सर, यही करेक्ट। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन की अभी उनका क्वेश्चन दूसरा था, आपका क्वेश्चन अंशिका दूसरा था ना? योर क्वेश्चन वाज डिफरेंट राइट ना? यस सर। ठीक है, ये नहीं था, ये तो इलस्ट्रेशन वही है ना, क्लियर। यस सर वही। ये तो इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है, इसमें आप सीधा है। थेफ्ट भी नहीं होगा ना, जब सीपीटी नहीं होगा तो थेफ्ट भी नहीं होगा। आप उसमें जाओ ही मत, पता है ये एज इट इज ऐसे आएगा और आप थेफ्ट लिख दो। आप अभी दिमाग में बनाओगे ना कि थेफ्ट नहीं होगा, तो आप एग्जाम में वो गलत करोगे। डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं हुआ तो थेफ्ट नहीं होगा, सीपीटी भी नहीं होगा, बट इस केस में डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, समझ रहे हो? और एज इट इज मैं बोल रहा हूँ, इलस्ट्रेशन हो एज इट इज ऐसे ही आएगा एग्जाम में, अलग से लिखेंगे नहीं कि मैडम डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, अब बताइए, समझ रहे हो? यस सर। तो अभी से ट्रेन नहीं करोगे ना, तो आप वहां पर वो बोलोगे कि यार हमने तब किया था, तब तो मैंने सोचा था कि ये होगा, तो फिर आप टिक कर दोगे उसको। सर मैं इसको 2 दिन से सोच रही हूँ। कुछ सोचो मत ना, सिंपल है। अब इसमें कितना सिंपल चीज है, इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल एकदम। क्या सिंपल? अब इसमें इतनी सिंपल चीज है, H और W की बात हो रही है हमारे पास, ठीक है? हम 27 लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो W के पास अगर पोजेशन, अगर W के पास कस्टडी है किसी भी सामान की H के, तो हम मानेंगे H के पास ही पोजेशन है, हम मानेंगे कि H के पास ही पोजेशन है, भले W के पास वो सामान कस्टडी में रखा हुआ है, बट हम मानेंगे कि H के पास पोजेशन है, ठीक है? अगर W ने मान लो Z को दे दी वो चीज, और Z को पता है कि W के पास अथॉरिटी नहीं है देने की, तो वो थेफ्ट मानी जाएगी। अब थेफ्ट क्यों मानी जाएगी? क्योंकि आपने इसके पोजेशन W, अब ये H की पोजेशन से ले ली एक चीज, क्योंकि W के पास कस्टडी है और H के पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है उस जगह की,
तो आपने थेफ्ट कमिट कर दिया। फाइन। अब W की लायबिलिटी इसमें क्या होगी? W विल बी हेल्ड लायबल फॉर 403। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो अब सर हाँ, और अब W को 405 में क्यों नहीं लायबल कर सकते, ये मुझे बताओ, कोई बता सकता है? सर इंटरेस्टमेंट नहीं था 227 को क्योंकि apply। H ने अपनी पोजीशन एब्डिकेट ही नहीं की ना, उसने तो मान के चल रहा था कि मेरी पोजीशन है। फाइन, अब क्लियर है? यस सर। सर यहाँ मतलब सर अगर सीपीटी नहीं होगा तो थेफ्ट भी नहीं होगा ना? अगर आप बोल रहे हो कि सीपीटी नहीं होगा तो थेफ्ट भी नहीं, किसका थेफ्ट? सीपीटी नहीं हुआ तो थेफ्ट हो सकता है ना। अगर सीपीटी नहीं हुआ तो थेफ्ट हो सकता है ना। सीपीटी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। सीपीटी में पोजेशन एक बंदे की जा रही है। फाइन। तो थेफ्ट में एक पोजीशन अपना अपना बंदा एक पोजीशन रिटेन कर रहा है। तो अगर सीपीटी नहीं हुआ तो थेफ्ट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, समझे? बाकी हाँ, इंटेंशन पे आ गए, इंटेंशन पे आ गए तो दोनों में इंटेंशन नहीं है तो इंटेंशन नहीं है, ऐसे तो इंटेंशन नहीं है तो कोई भी ऑफेंस नहीं हो सकता, यही है ना। यस सर यस। एक्सेप्ट किडनैपिंग एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस, वो बात उस बात पर आ गए तो वैसे तो कोई भी ऑफेंस नहीं हो सकता इंटेंशन पे। थैंक यू सर। ठीक है, यस अदिति। सर एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी, यू आर ऑडिबल। सर एक्चुअली मुझे उस टाइम मैं पूछ नहीं पा रही थी, मुझे अभी तक ये कस्टमर कंडक्टर और ये गवर्नमेंट वाला एग्जाम्पल नहीं मेरे दिमाग में घुस रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। ठीक है, बताता हूँ, वेट। चलिए, ये है पैसेंजर, ठीक है, एक हो गया पैसेंजर। अब एक है, दूसरा है कंडक्टर। फाइन। तीसरा है आपकी गवर्नमेंट। अब पैसेंजर क्या करता है? पैसेंजर पैसे देता है कंडक्टर को, कंडक्टर को पैसे देने चाहिए गवर्नमेंट को। पैसेंजर देता है 1000 रुपए, कंडक्टर 1000 के 500 सिर्फ देता है गवर्नमेंट को। तो 500 रुपए इसने गुम कर दिए। ही हैज डिसऑनेस्टली यूज्ड दिस मनी और डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड। ठीक है, ही हैज डिसऑनेस्टली यूज्ड और मिसअप्रोप्रिएटेड। फाइन, दोनों में से जो भी किया है उसने, उसकी इच्छा। फाइन। अब सवाल यह है कि वेदर दिस केस फॉल्स अंडर 405। 405 में क्या है कि इंटरेस्टमेंट होना चाहिए। अब इंटरेस्टमेंट यहाँ पर पैसेंजर इंटरेस्ट नहीं कर रहा 1000 रुपए। क्यों इंटरेस्ट नहीं कर रहा पैसेंजर 1000 रुपए? क्योंकि पैसेंजर पोजेशन दे रहा है और ओनरशिप भी दे रहा है। क्या पैसेंजर ओनरशिप रिटेन कर रहा है? नहीं सर, वो रिटेन नहीं कर रहा क्योंकि वो दे रहा है वो पैसे। मेन एलिमेंट क्या है इंटरेस्टमेंट का? रिटेंशन ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप रिटेन नहीं कर रहा, सारा ही दे रहा है कि 1000 रुपए तुम पूरे ले लो। फाइन। तो अब दूसरा है कि तो पैसेंजर के साथ तो इंटरेस्टमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सरकार के साथ इंटरेस्टमेंट है? द आंसर टू दिस इज यस। पैसेंजर सरकार के बिहाफ पे पैसे दे रहा है, मतलब सॉरी, कंडक्टर सरकार के बिहाफ पे पैसे ले रहा है। कंडक्टर जो है सरकार के बिहाफ पे पैसे दे रहा है। आइडियली ये पैसे सरकार को मिलने चाहिए थे डायरेक्टली, अब कंडक्टर ले रहा है ये। तो यू कैन से कि ये सरकार ने ये पैसे इंटरेस्ट किए हैं कंडक्टर को। फाइन। सर गवर्नमेंट ने पैसे नहीं इंटरेस्ट किए, गवर्नमेंट ने तो टिकट दिए है कि ये तुम पैसेंजर को दो और तुम उनसे पैसे लो। हाँ, तो इंटरेस्टमेंट ये दिया है कि ये पैसे जितने भी रिसीव होंगे वो आपको मुझे देने हैं वापस। तो इन अ सेंस उन्होंने एक पैसे भी इंटरेस्ट कर दिए, उन्होंने पैसे का इंटरेस्टमेंट किया है कि भाई 1000 रुपए ये जो है वही तुम हमें दोगे, जो जितने तुमको पैसेंजर से मिले उतने ही तुम हमें दोगे। फाइन। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टमेंट। द मोमेंट पैसेंजर पेज द अमाउंट टू द कंडक्टर, तब समझो कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कर दिया। जैसे ही पैसे दे दिए ना पैसेंजर ने कंडक्टर को, तो समझ लो कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कर दिया है कि ये पैसे हमें मिलने चाहिए वापस। समझ रहे हो? अब क्लियर है? सर ये इतना तो मुझे समझ आ गया जो आपने एग्जाम्पल में बताया सर, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि पुष्पा राय में क्या चीज गलत बोली थी। मुझे तो सही लग रही है। पुष्पा राय में गलत ये चीज बोली थी क्योंकि बोला था कि अगर एक प्रॉपर्टी अग्रीव्ड पर्सन से नहीं फ्लो होगी तो उसमें सीबीटी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या था, पैसेंजर अग्रीव्ड थोड़ा ही था, पैसेंजर के साथ तो कुछ झोल नहीं हो रहा था।
ठीक है। मतलब गवर्नमेंट अग्रीव थी, लेकिन प्रॉपर्टी जो फ्लो हो रही थी वो पैसेंजर के थ्रू हो रही हाँ थी, हाँ इसीलिए सीबीटी नहीं होगा, ये इसमें कह रहे थे। हाँ, बट वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। सोमनाथ ने वो ठीक किया। सोमनाथ ने बोला कि जैसे ही पैसे कंडक्टर के पास आ जाएं तो आप मानोगे कि इंटरेस्टमेंट शुरू हो गया। फाइन। अब यानी पुष्पा राय में बोला गया था कि ये सीबीटी नहीं है, ये इस तरीके पुष्पा का राय है ही question नहीं, था। पुष्पा राय नहीं है, सर काट दो उसको अपने बुक से, नहीं है पुष्पा राय। सोमनाथ ने जो बोला था वो याद रखो, ठीक है। सर तो सोमनाथ ने सिंपली ये बोला था कि हाँ सीबीटी होगा हाँ बस, और करेक्ट इंटरेस्टमेंट है गवर्नमेंट की करेक्ट। तरफ। इंटरेस्टमेंट तब आएगा जैसे ही पैसेंजर ने पैसे पे कर दिए, इंटरेस्टमेंट शुरू हो गया। और अग्रीव पार्टी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है। सर यानी मतलब पैसेंजर केस फाइल नहीं कर सकता है इसमें ना? पैसेंजर क्यों ही फाइल करेगा, उसके साथ तो अच्छा कुछ हो ही हाँ, नहीं उसमें रहा। तो दे दिया, ओके ओके। ठीक है। सर लेकिन पुष्पा राय वाला केस जो है वो नहीं उसमें आंसर में लिखूं मैं। नहीं नहीं, काट दो आप। सर तो ठीक है, आपने क्यों कराया फिर ये? मैंने समझाने के लिए कराया कॉन्सेप्ट बेटर, मुझे क्या पता तुम कंफ्यूज हो जाओगे अननेसेसरी। सर तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको सच में काट रही हूँ कि आप मजाक में कह नहीं, रहे हैं? सच में काट दो, अच्छा ओके सर, काट दो। ठीक ओके है। सर, ठीक ये है सर, ये संशिका बताइए। थैंक यू। Sir, I'm really sorry. I just want to confirm one thing from that MN servant वाला example only. हम्म Sir, जो servant है, अगर वो he went to his village and used that car for his own use, so that is why he was liable for theft. But अगर वो कार ले जाके किसी और को दे देता तो वो servant liable होता 403 के लिए, और जो अदर पर्सन होता जिसको कार दिया वो थेफ्ट के लिए लाइबल होता ना सर? नहीं, सर्वेंट वुड हैव बीन लायबल फॉर थेफ्ट। अगर किसी और को देता था तो पहले तो थेफ्ट के लिए लायबल होता था, ठीक है, क्योंकि उसने मूव करके दूसरे किसी को दे, मूव तो किया ही, उस पोजीशन से हटा दी, मूव कर दी उसके पोजीशन से, तो ही वुड हैव बीन लायबल फॉर थेफ्ट। अदर पर्सन वुड हैव बीन लायबल फॉर रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी 411। तो सर तो यहाँ पे जो ओ वाला एग्जाम्पल है सर, वहाँ पे वाइफ मूव कर रही है प्रॉपर्टी, बट तो वाइफ तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में ही है ना। सर हस्बैंड है ना कंस्ट्रक्टिव पोजीशन? सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ वाइफ की तो कस्टडी ही है ना, तो इसके लिए वो तो थेफ्ट के लिए उसको तो चार्ज ही नहीं कर सकते आप, वो सर 403 में है। 27 अप्लाई हो रहा है इसलिए वो हाँ कर, हाँ हाँ, तो इसके सर लिए, सर्वेंट के लिए भी तो 27 अप्लाई होगा। हाँ उस सॉरी सॉरी, उसमें भी 403 होगा, उसमें 403 एप्लीकेबल होगा। सर थेफ्ट नहीं होगा ना वो? थेफ्ट नहीं होगा, थेफ्ट नहीं होगा, करेक्ट। थैंक यू सर। 403 उसमें, ठीक है। यस सार्थक। लास्ट सर हाँ स्त्रीधन में भी तो मतलब वही अंशिका दी वाले क्वेश्चन में भी सेक्शन 27 की जो प्रिजम्पशन है वो अप्लाई करेगी ही करेगी। स्त्रीधन में सेक्शन 27 है ही नहीं ना। स्त्रीधन में क्या हो रहा है, वाइफ हस्बैंड को दे रही है, वहां पर वाइफ है, हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड का सिनेरियो ही नहीं है वहां पर। जो सर अंशिका दी ने क्वेश्चन पूछा ना उसके अंदर भी मतलब हस्बैंड वाइफ उसमें का 27 का सीन नहीं आएगा। द रीजन बीइंग 27 एक बार खोलो, एक बार खोलो 27, हो 27 पे, एक सेकेंड, ठीक है। व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ पर्सन्स वाइफ, अब यहाँ पर हस्बैंड लिखा है कहीं? ओके सर, ठीक है, तो इसलिए 27 वाला गेम उसमें नहीं आएगा। फाइन, ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। यस यश। सर क्लास एंड हो गई ना? हाँ एंड हो गई। सर एक चीज पूछनी थी कि पूछो। सर कल वाली क्लास शाम को हो सकती है क्या? अरे क्योंकि हमारे 3 से 6 मेरे सेमेस्टर के पेपर रहेंगे। अरे यार शाम को मुश्किल है, रीजन सर बीइंग कि तभी आपने रखा होगा दोपहर में, क्योंकि शाम को बिजी हाँ होंगे। हाँ, शाम को ये है, इनका ऑनबोर्डिंग है न्यू बैच का ना, अच्छा तो वो करना है मुझे, तो उसके लिए मेरे तो कम ही काम है, बट उसके लिए है, तो शाम को इट इज नॉट पॉसिबल, मुश्किल है। ठीक है सर। ठीक है। ये संशिका। सर जस्ट वन क्वेश्चन सर, ये क्लास जो कल होगी 1 आवर की होगी कि 2 आवर की? 2 hours, 2 hours, 2 hours we'll have to do। ठीक है, चलिए चलिए, बाय गाइस, सी यू टुमारो।